हेलो मानसी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? Good afternoon, sir. I am fine. ओके। सो मानसी, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। So my name is Mansi Agnihotri. I am from Sagar, Madhya Pradesh. I have completed my schooling from Kendriya Vidyalaya Dhana, Sagar. After that, I have completed my Bachelor of Arts from Dr. Hari Singh Aur Central University, Sagar. After that, I have completed my 3-year law degree from Dr. Hari Singh Aur Central University, Sagar, in which I secured second rank. Since then, I have been preparing for judicial service examination, and this is my first attempt in Madhya Pradesh. So my hobby is dancing, and I like to dance in my free time. ओके, एनी स्पेसिफिक डांस दैट यू आर गुड एट? Sir, I am good at folk dance. फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश? Uh, sir, not only Madhya Pradesh, but also from of Rajasthan, of Assam, of Jammu Kashmir. ओके, Yes, कैन sir. यू टेल द नेम्स ऑफ दीज डांसेस? Yes, sir. In Madhya Pradesh, the main folk dance is Badhai or Baredi and Rai. ओके, In Rajasthan, the main folk dance is Kalbelia and Ghumar. In Assam, people can perform Bihu. ओके। And सो यू yes, यू आर मास्टर एट ऑल ऑफ दीज डांसेस, और अ फ्यू ऑफ देम यू आर गुड एट दीज डांसेस? sir, I can perform all of them. Okay, okay, okay. So you'd never thought of pursuing dancing in as your career? No, sir, I only do it in my time, in free time, or when in school in dance competitions. Okay, okay, okay. Mansi, you never thought of going for LLM? No, sir. Okay. So judiciary was your primary objective. Yes, sir. Okay, okay, fair enough. And are you married or unmarried? Sir, unmarried. Okay, okay, fair enough. So, Mansi, talking about your favorite subject, which is your favorite subject out of these 12 subjects in the syllabus? Sir, almost all are my favorite, but mainly I prefer the evidence. You prefer the Evidence Act. Okay, Yes, okay. sir. So, to begin with the Indian Evidence Act, what do you think is the relevance of documentary evidence in proving any kind of fact? Sir, it is the best evidence rule that uh, oral evidence should be excluded while documentary evidence, to prove the documentary evidence. It is Okay. given from it is incorporated in section 91 and 92 of Evidence Act, that only if any party have to prove the content of document, then only the document should have to be produced, not the oral evidence of it can be given. Mhm. So, So, it is a relevant piece of evidence. yes, sir. Okay. In let's say for example that you become a judge, मानसी आप जज बन जाते हैं, आपको मध्य प्रदेश में एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग भी मिल जाती है, आप उस पोस्ट पे भी काफी समय तक रहते हैं। तो कुछ समय बाद अगर ये सवाल उठता है कि क्या मानसी एज अ मजिस्ट्रेट, एज अ जज किसी जगह पे पोस्टेड थी या पोस्टेड नहीं थी, तो क्या ये प्रूव करने के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा? सर, एज पर सेक्शन 91 एक्सेप्शन 1, अगर कोई ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर है, और उसकी जो वो अपॉइंट हुआ है बाय राइटिंग, और वो वर्क कर रहा है एज एन ऑफिसर, तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना जरूरी नहीं है। ओके, ओके। जो सेक्शन नंबर 91 है, जो बेस्ट एविडेंस रूल आपने कहा, ये किस तरह के तीन मेजर डॉक्यूमेंट्स की बात करता है? सर, एनी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन which ओके, are reduced by the party to form of a document, and any document which is required by law to be in document.
ओके, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं क्या, कि जहां पे ओरल एविडेंस अलाउड होगा? Yes, sir. Under Section 92, the six Okay. provisos has been given. अच्छा, आप बता सकते हैं कौन से हैं वो 6 प्रोवाइजोस? Yes, sir, I can try. हाँ प्लीज। So, firstly, to invalidate any document or, for example, like fraud, intimidation, coercion has been used. So, secondly, uh, about which the document is silent and which is not inconsistent with the terms of the conditions of the document, and the court regards it as a formality of the document. Thirdly, there is subsequent oral agreement between the parties about the condition precedent. And fourthly, there is distinct subsequent oral agreement to resign or to modify the contract, apart from that which is required by law to be registered essentially. And ओके। fifthly, uh, about the custom or usages related proviso है sir. And sixthly, language अगर कोई existing facts पे proof हो रही है तो उसको proof ओके, करने के लिए oral evidence दिया जा सकता है. दिया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें ओरल एविडेंसेस की, तो ओरल एविडेंस में हियर से एविडेंस को तो कंसिडर नहीं किया जाता है, हियर No से sir. एविडेंस तो नहीं माना जाता है, तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। कोई ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे अगर ओरल एविडेंस नहीं है, या ओरल एविडेंस डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, हियर से एविडेंस है, तो उसको भी एडमिसिबल किया जाएगा? Yes, so there are exceptions to it. ओके, Uh, व्हिच आर so, दोस? so this is registry under Section 6 of Evidence Act. Confessions, admissions are also exception to it. And a statement made by the person under Section 32 Clause 1, that is dying declaration. ठीक है, तो ये सब एक्सेप्शंस में आते हैं हियर से के। Yes, sir. डाइंग डिक्लेरेशन पे डू वी हैव एनी लैंडमार्क जजमेंट, मानसी? Yes, sir. There are various landmark judgment on dying declaration. अच्छा, Sir, one is cautious. Sir, यस can I प्लीज। tell? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। Kaushal, Kaushal versus State of Bombay. Sir, I can ओके, कौशल या able कौशल not राव? not able to yes, sir, Kaushal Rao. I am unable to recall the full name of the case. व्हाट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ कौशल राव? Sir, it was held that the dying declaration can form the sole basis of conviction if that is true and voluntarily made. ओके, एंड पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का जो केस है वो क्या बताता है हमें? Yes, sir, it is also the landmark judgment on dying declaration. Sir, I am unable to recall it right now. अच्छा अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन क्या किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना जरूरी होता है, या फिर इट हैज टू बी इन एनी विच वे पॉसिबल, किसी भी तरीके से हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन? No, sir, एक particular format dying declaration का तो नहीं है. ऐसा कोई केस है जो ऐसा कहता है? Yes, sir, there is case, but I am not able to recall right now, sir. ओके, कोई बात नहीं। बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अलावा भी आपका कोई अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? Sir, all are my favorite, sir. All are your favorite subjects. Okay. So, section number 5 of Limitation Act, ये किस बारे में बात Yes, करता है? sir. Uh, sir, it talks about the concept of condonation of delay, where the court can extend time in certain cases. It only applies in on appeal and applications other than an application under 20 Order 21 of Civil Procedure Code. Okay. Sir, What? if the party shows the sufficient cause, then the court may uh, grant him the time to file any appeal or application beyond the period of limitation. What is the difference between an appeal and application, Mansi? Sir, appeal is preferred in higher court, Okay. whereas application
ट्रायल कोर्ट में भी फाइल हो जाती है। एंड एप्लीकेशन वेरियस टाइप्स की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीडमेंट ऑफ, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सब्सटीट्यूट किया जाए तो उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। सो वेरियस एप्लीकेशंस एक सूट में हो सकती है। ओके ओके। आपने मानसी बात की ऑर्डर 21 के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली यस ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी इज अबाउट? सर, इट इज अबाउट द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का कोई बेसिक प्रोसेस होता है कि अगर कोई जजमेंट है और उसे एग्जीक्यूट करवाना है तो उसका कोई फंडामेंटल यस सर। प्रोसेस अगर मैं आपको कहूँ ब्रीफली मुझे पूरा ऑर्डर 21 समझाएं तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन? सर, देयर आर 106 रूल्स टू इट। ओके। सर, वेरियस प्रोसेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशन कोई भी डिग्री का अगर करना है तो सबसे पहले अगर मनी डिग्री है तो उसका प्रोसेस बताया हुआ है। देन अरेस्ट की प्रोसेस बताई हुई है। व्हेन एग्जीक्यूशन होगा बाय अरेस्ट, बाय अरेस्टिंग द पर्सन। देन एग्जीक्यूशन होगा बाय अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। आफ्टर दैट, सेल इज द प्रोसेस ऑफ, सेल इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा। एंड यस एंड इसके हिसाब से अगर हम जाएं तो ऑक्शन परचेजर को सेल के दौरान, यस सेल होने के तुरंत बाद ऑक्शन परचेजर को लगभग कितना अमाउंट जमा करवाना पड़ता है तुरंत? sir, I am not sure about this, but about 5% of the purchase money. ओके। Yes, नॉट श्योर yes, अबाउट इट। ओके ओके, ठीक है। yes. एंड हु एग्जैक्टली इज अ गार्निशी, मानसी? So garnishing in simple language refers to the debtor of the judgment debtor. अच्छा, डेटर ऑफ द जजमेंट डेटर। ठीक, तो उसका क्या रोल होता है सिविल स्ट्रक्चर में, सिविल प्रोसीडिंग्स में क्या रोल होता है उसका? सर, उसका ये रोल होता है कि अगर डिग्री होल्डर अगर चाहे तो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि जो मनी जो जजमेंट डेटर को उसे देना है वो गार्निशी जजमेंट डेटर को ना दे के सीधा डिग्री होल्डर को पे कर दे। तो कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाता है। तो दैट इज द रोल ऑफ गार्निशी। गार्निशी। ओके। मानसी, आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? यस सर। आज के न्यूज़पेपर की मेजर हेडलाइन क्या रही? सर, इट इज अबाउट द डिमोनेटाइजेशन जो कल जजमेंट आया। अच्छा, तो डिमोनेटाइजेशन का जो जजमेंट है वो किस रेशियो में आया है? सो 4:1। अच्छा। एंड डिसेंटिंग जज कौन रही है? सर, ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना। अच्छा, इनका क्या ओपिनियन रहा है, कुछ आपको आइडिया? सर, इन्होंने बोला है कि दो इट इज वैलिड, बट जो सेक्शन 26 है जो आरबीआई एक्ट का, उन्होंने कहा है कि वो जो एनी सीरीज ऑफ जो नोट है वो कर सकते हैं डिमोनेटाइज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई की जो काउंसिल होती है उसके रिकमेंडेशन पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन इस बेसिस पे दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइज किया है वो उसकी उनकी कंसेंट से नहीं किया है। यहाँ पे आरबीआई ने कंसेंट ली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ओके। ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट हुई है। तो इस बेसिस पे उन्होंने अभी डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। अभी करेंटली आरबीआई के गवर्नर का क्या नाम है? सॉरी सर, आई विल लुक ऑन दैट। अच्छा, कोई बात नहीं। कमिंग टुवर्ड्स अनदर अनदर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक बात हुई है 4:1 का जजमेंट। तो 4:1 जजमेंट का मतलब ये कैसी बेंच थी? ये डिवीजन बेंच थी या ये सिंगल बेंच थी या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी? इसको हम कौन सी बेंच करें? सर, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क्राइटेरिया क्या होता है, मानसी? तो सर, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 होने चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, यस सर। 2019 की बात है, समय हो गया है लगभग लगभग 3-4 साल पुरानी बात हो गई है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से डील करता था।
जैसा आपको आइडिया यस होगा। सर। तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से क्या 370 का एब्रोगेशन होना सही था या गलत सर अगर हम कॉन्सिक्वेंस देखें आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद, था? तो एग्जैक्टली। बहुत सारे चेंजेस जो जम्मू कश्मीर में नहीं थे, मतलब जम्मू कश्मीर शायद मिस कर रहा था, वो अब वहाँ के पीपल्स को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ के लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी अब खरीद सकते हैं वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ के लोग एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अब जी रहे हैं जो कि पहले नहीं जी पा रहे थे। तो अगर सम अप करें तो आर्टिकल 370 को हटा के इस मतलब सही किया सर। सही किया है। अच्छा। इसी से रिलेटेड एक और अभी पॉलिटिकल काफी बातचीत चल रही है और काफी ज्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि राहुल गांधी जी की एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। तो यस सर। भारत जोड़ो यात्रा जो है ये अभी कहाँ तक पहुंची है, इसका कोई आइडिया है आपको, मानसी? सर अभी तो मुझे रिकॉल, सर अभी तो नहीं है मैंने आइडिया। सर अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था तो वो राजस्थान क्रॉस कर गई थी। अच्छा, ठीक है। बस। मानसी, मान लीजिए कि आप जज बन जाते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं एंड ये वाली एग्जामिनेशन से आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। अब इस वक्त आप अपने करियर के पीक पे होंगे, मतलब आप सिलेक्शन पा चुके हैं, आप जज बन चुके हैं, आप प्लेसमेंट, आप अपना पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त आपके घर वाले आप पे जोर बनाते हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या आप शादी मतलब करेंगे या रुकेंगे? आपका क्या डिसीजन होगा? क्योंकि घर वाले तो कहेंगे कि अब बिटिया का सिलेक्शन हो गया है और नाते रिश्तेदारों में भी बात पहुंच जाएगी। तो क्या आप इस वक्त फिर शादी करने जाएंगे या आप खुद को थोड़ा समय देंगे और उसके बाद शादी सर आई थिंक आई एम गुड इन मैनेजमेंट स्किल्स, सो करेंगे? मैं बेसिकली सर अगर कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिलता है तो डेफिनेटली मैं मिस नहीं करूंगी। अ, और अगर नहीं मेरे अकॉर्डिंग मतलब मुझे कोई लाइफ पार्टनर एज अ लाइफ पार्टनर वो इंसान मुझे पसंद नहीं आता, तो फिर मैं अपने घर वालों को समझाऊंगी एंड ऑब्वियसली वो समझेंगे। अच्छा, मतलब घर वाले जो हैं वो आप पे अगर जोर बनाते भी हैं तो आप उन्हें समझा देंगे, यस सर। मना लेंगे। ठीक है। मान लीजिए कि आपकी मैरिज होती है। अब मैरिज होने के बाद आप ये देखते हैं, या किसी एक व्यक्ति है, रैंडम हाइपोथेटिकल पर्सन है, उसकी मैरिज हुई है और उस महिला का जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया है, और उसका जो पति है वो जुडिशरी बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करता है। मान लीजिए महिला जो है यस वो जज है, पति जो है मान लीजिए इंजीनियर है या किसी दूसरी फील्ड को बिलोंग करते हैं, और उनका कोई एक कॉन्ट्रैक्ट का मामला उन्हीं महिला के कोर्ट में आ जाता है। अब आप खुद को उन महिला की जगह रख के देखें और आप बताएं कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो, कि आपके जो पति हो मान लीजिए जुडिशियल बैकग्राउंड के ना हो, और उनका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मामला, ठेकेदारी का मामला आपके सामने आता है, तो आप क्या करेंगे? सर मैं ट्रांसफर कर दूंगी टू द हायर अथॉरिटी वो केस। अच्छा, मतलब आप उसका ट्रायल नहीं देखेंगे? नो सर। ऐसा क्यों? Sir, because it is also opposed to the principles of natural justice. Here, the judge not remains unbiased, biased हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो फिर it is opposed to the principles of natural justice. अच्छा, जैसे हम बात करते हैं, आपने कहा अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल Yes. जस्टिस की बात क्या कहीं पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री कहीं पे नेचुरल जस्टिस की बात करती? Sorry, sir, I am not able to recall right now. ओके, ओके। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की चलिए आपसे बात करता हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोग देखते हैं
मान लीजिए एक एस्पेक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, रिजर्वेशन। तो ये जो पॉइंट है यस सर। रिजर्वेशन, इस पे आपका स्पेसिफिकली क्या ओपिनियन है क्या? अभी क्योंकि पिछले साल में काफी डिबेट का टॉपिक रहा है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यस सर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो रिजर्वेशन को लेकर के आपका क्या ओपिनियन? सर, if we look into the 103rd Constitutional Amendment Act opinion, जो ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड ऑनरेबल जस्टिस जेबी पार्टीवाला ने कहा कि रिजर्वेशन जो दिया गया था वो सिर्फ उस टाइम जो था इंडिपेंडेंस के बाद एक सोशल इनक्वालिटी को खत्म करने के लिए दिया गया था। और उन्होंने एक सजेशन दिया है कि ये फिर से कंसिडरेशन में लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो एंड सर, आई ऑल्सो थिंक although it is good, the people who is not adequately represented in the society must represented by the reservation, but there are also some people जो reservation ले रहे हैं, although they are not entitled for that. So I think it may taken into consideration. तो आपके हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए, पर उन तबकों के लिए होना चाहिए जहां पे उसकी जरूरत है, अदरवाइज हर Yes किसी को sir. रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। ओके ओके Yes ओके। sir. थैंक यू सो मच मानसी, थैंक यू सो मच। Thank you sir.